السلام علیکم، میں لایا ہوں آپ کے لیے آج ایک سپر ہٹ ویڈیو صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب کے اوپر۔ فرعون جو ہزاروں سال تک پورے ایجپٹ پر راج کرتے رہے، لیکن اب فائنلی مسلمان عمر بن خطاب کی خلافت میں فرعونوں کے اسی ایجپٹ کو ہمیشہ کے لیے ان سے چھیننے والے تھے۔ یہ سٹوری ایجپٹ کی فتح کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج تک اسے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا۔ پر ویٹ، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خلیفہ عمر یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان ایجپٹ پر حملہ کریں، کیونکہ ایجپٹ پر حملے سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمانوں کی خلافت پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی تھی، طاعون۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے مسلمانوں کی فوج کے 25,000 سولجرز کو شہید کر دیا تھا، اور صرف سولجرز کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز بھی اس بیماری سے فوت ہو چکے تھے۔ جس کے بعد خلیفہ عمر خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی آرمی کی طرف گئے، اور وہاں ان کی ملاقات مسلمانوں کے نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے ایک نیا آئیڈیا، ایک نیا پلان رکھا کہ اب ہمیں سلو ہونے کی بجائے فرعونوں کے ملک ایجپٹ کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر اس بارے میں تھوڑا کنفیوز تھے کہ ابھی ہماری اتنی بڑی فوج اس بیماری سے شہید ہو چکی ہے، اور بالکل ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایجپٹ کو فتح کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور حضرت عمر کو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی فوج ایجپٹ کی طرف چلی جائے اور پیچھے سے ان پر پرشین ایمپائر حملہ کر دے۔ لیکن آرمی چیف عمر بن عاص اس سب کے بعد بھی حضرت عمر کے سامنے اپنے پلان پر مضبوطی سے کھڑے رہے کہ نہیں، ہمیں ایجپٹ کی طرف ہر حال میں جانا چاہیے، کیونکہ عمر بن عاص اسلام لانے سے پہلے مکہ کے ایک بہت رچ بزنس مین تھے، اور اپنے بزنس کی وجہ سے ان کا بار بار ایجپٹ کی طرف آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ تو اب انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح پتا تھا کہ ایجپٹ کے لوگ مسلمانوں کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آخر ان کے بار بار کہنے پر حضرت عمر نے ان کی بات مان لی اور انہیں ایجپٹ پر حملے کی اجازت دے دی، لیکن ایک شرط پر کہ چلو تم ایجپٹ کی طرف روانہ تو ہو جاؤ، لیکن اگر میرا ارادہ بدل گیا تو تمہیں اپنی پوری فوج کے ساتھ واپس آنا ہوگا۔ یہ سن کر عمر بن عاص نے اپنی فوج کو ریڈی ہونے کا حکم دیا اور صرف 4,000 کی فوج کے ساتھ ایجپٹ کے کیپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ Now, at the same time, عمر بن عاص ایجپٹ اور حضرت عمر مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس پورے راستے میں حضرت عمر صرف ایجپٹ کے بارے میں ہی سوچتے رہے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر مدینہ پہنچے، انہوں نے سارے بڑے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے ایجپٹ کے بارے میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان اور باقی صحابہ نے کلیئرلی کہا کہ ہمیں ایجپٹ کی طرف جانے والی فوج کو روک دینا چاہیے۔ آرمی چیف، منسٹر، صحابہ، ان سب کی باتیں سننے کے بعد آخر حضرت عمر نے فیصلہ کیا اور عمر بن عاص کے نام ایک لیٹر بھیجا، جس میں حضرت عمر نے اپنے آرمی چیف کو کلیئر آرڈر دیا تھا کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے اپنی پوری فوج لے کر واپس آ جاؤ، لیکن اگر تم لوگ پہلے ہی ایجپٹ کے بارڈر کو کراس کر چکے ہو تو پھر اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ جیسے ہی حضرت عمر کا یہ میسنجر عمر بن عاص تک پہنچا، مسلمان پہلے ہی ایجپٹ کے بارڈر کو کراس کر چکے تھے۔ لیکن یہاں پر سٹوری کا ایک دوسرا اینگل بھی کہ جیسے ہی حضرت عمر کا میسنجر عمر بن عاص تک پہنچا، مسلمان ایجپٹ نہیں پہنچے تھے بلکہ ایجپٹ کے بارڈر سے بالکل تھوڑی سی دوری پر تھے۔ لیکن جیسے ہی عمر بن عاص نے حضرت عمر کے میسنجر کو دیکھا، انہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً یہ لیٹر کھولا ہی نہیں بلکہ پہلے اس میسنجر کو بٹھایا، اسے کھلایا اور اسے تھوڑا آرام کرنے کو کہا۔ اور جیسے ہی مسلمانوں نے اس بارڈر کو کراس کیا، آرمی چیف عمر بن عاص نے خلیفہ عمر کے لیٹر کو کھولا اور کہا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ عمر بن عاص مسلمانوں کی پوری فوج کو لے کر بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے فائنلی ایجپٹ کے کیپٹل کے سامنے جنگ کے لیے ریڈی کھڑے ہو گئے، جسے آج کائرو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سٹی نہیں تھی بلکہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے پاورفل سٹیز میں سے تھی، جس پر پچھلے 600 سال سے رومن ایمپائر کا راج تھا، اور کوئی بھی ان سے یہ سٹی نہیں چھین سکا تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے سیدھا آ کر اس سٹی کے سامنے اپنے ٹینٹس لگائے اور جنگ کے لیے بالکل ریڈی ہوئے، جسے دیکھ کر رومنز نے بھی اپنی پوری فوج کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیا، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل تھے، تاکہ یہ کرنے سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جائے۔ بٹ وہ کس کو ڈرا رہے تھے؟ مسلمانوں کو؟ I don't think so۔ عمر بن عاص نے ان کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر اپنا ایک میسنجر ان کے پاس بھیجا اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم نے کیا بولنا ہے
इस मैसेंजर ने सीधा जाकर सारे रोमन्स के सामने कहा कि तुम लोग जानते भी हो हम कौन है। हमने अभी अभी तुम्हारे बादशाह हरकल को बुरी तरह हराया है, तो अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वहाँ पर सब हैरान हो गए, लेकिन वहाँ के लीडर साइरस ने कहा कि बात तो सही है। इसी के साथ अमर बिनास ने फुल ताकत के साथ इजिप्ट के कैपिटल पर हमला कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 4000 की फौज के साथ इजिप्ट का कैपिटल फतह करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए अगले 7 महीने तक मुसलमान इसी तरह इस सिटी के सामने अपने कैंप्स में बैठे रहे और आखिर आर्मी चीफ अमर बिनास को भी समझ आ गई कि अब वक्त आ चुका है कि मदीना में खलीफा उमर से मदद मांगी जाए। हजरत उमर को इस बात का पहले ही पता था कि अमर बिनास इजिप्ट को बहुत ही लाइटली ले रहा है और उसे जरूर ज्यादा फौज की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने फौरन 12,000 की फौज इजिप्ट की तरफ रवाना की और इस फौज का लीडर एक बहुत बड़ा सहाबी जुबैर बिन अवाम को बनाया। हजरत उमर जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की इतनी इज्जत किया करते थे कि उन्होंने अपनी वफात के बाद खलीफा बनने वाले 6 लोगों में से एक जुबैर बिन अवाम को भी नॉमिनेट किया था, जिसे फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। तो अब ये नई फौज भी आकर अमर बिन आस के साथ इजिप्ट में मिल गई और इन दोनों फौजों ने मिलकर बिल्कुल खालिद बिन वलीद के स्टाइल पर हमले का एक नया प्लान बनाया। अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकली और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई और जंग शुरू हुई। कुछ ही देर के जंग के बाद अचानक मुसलमान जंग से पीछे हटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जंग के मैदान से इतना पीछे आ गए कि ऐसे लगने लगा कि अब फाइनली मुसलमान ये जंग हार जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट इसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज आकर रोमन्स के फौज के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर अमर बिन आस ने दोबारा हमले का हुक्म दिया। इस तरह मुसलमानों ने रोमन्स की फौज को हर तरफ से घेर लिया और फिर इन्हें क्रश कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमान इस सिटी में दाखिल ना हो सके। आखिर एक दिन जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तंग आकर एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और अपने कुछ ही साथियों के साथ रात के अंधेरे में इस सिटी के अंदर दाखिल हुए और सीधा जाकर मुसलमानों के लिए गेट खोल दी। ये देखकर मुसलमानों की पूरी फौज इजिप्ट के कैपिटल में एंटर हुई और इस सिटी को फतह करके यहाँ के गवर्नर को ढूंढने लगी। बट इट वॉज टू लेट। गवर्नर पहले ही इस सिटी को छोड़कर इजिप्ट की सबसे पावरफुल सिटी अलेक्जेंड्रिया की तरफ भाग चुका था। नाउ गवर्नर भाग तो गया था, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि उसने यहाँ से भागते ही मुसलमानों की तरफ एक लेटर भेजा कि अब और बस है, मैं पूरे इजिप्ट को हजरत उमर के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अमर बिन आस ने गवर्नर की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमानों की जंग इस गवर्नर से नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के बादशाह से। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने इजिप्ट के सरेंडर की ये ऑफर एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस को अपने गवर्नर के इस सरेंडर का पता चला तो उसे गवर्नर की इस बुज़दिली पर बहुत गुस्सा आया कि इसकी औकात क्या है, इसने मुझसे पूछे बगैर पूरे इजिप्ट को सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उसने सारे रोमन फौज को मैसेज भेजा कि गवर्नर की बातों को छोड़ो और मुसलमानों के साथ आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमानों के आर्मी चीफ अमर बिन आस को भी समझ आ गई कि अब रोमन एम्पायर का बादशाह आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी अपनी आर्मी को अलेक्जेंड्रिया की तरफ जाने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मुसलमान अपना सामान पैक कर रहे थे और अपने टेंट्स को बांध रहे थे तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपना टेंट बांधने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके टेंट के अंदर ही एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और साथ उस कबूतर के बच्चे भी थे। तो अब अमर बिन आस ने इस कबूतर के घर को बचाने के लिए इस टेंट को यहीं पर रहने दिया। ये टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्तों में हर मुसलमान ने इस टेंट को एक निशानी के लिए यहीं पर रहने दिया और इसी टेंट के आसपास आबाद होने लगे। नाउ अरबी में टेंट को फुस्तात कहा जाता है और आगे जाकर इसी कबूतर के टेंट की वजह से इजिप्ट के कैपिटल का नाम ही फुस्तात पड़ा, जो आज तक इजिप्ट का कैपिटल है और उसे कायरो कहा जाता है। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। रोमन्स की कुछ ही अरसे बाद मुसलमान भी इस सिटी के पास पहुंच गए और इस सिटी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए क्योंकि अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर बनी एक बहुत बड़ी सिटी थी और हजरत उमर ने अपनी पूरी खिलाफत में इससे बड़ी सिटी पर कभी हमला नहीं किया था, जो दमास्कस और मदईन जैसी सिटी से भी बहुत बड़ी थी। मुसलमानों ने यहाँ पहुंचकर इस सिटी को फतह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसलमानों की सारी कोशिशें बिल्कुल फेल होती रही और अगले 6 महीने तक मुसलमान इस सिटी के दरवाजों के सामने बिल्कुल बेबस बैठे रहे और मुसलमानों के मोराल को और तोड़ने के लिए रोमन बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के साथ जंग के लिए तैयार की। अब फाइनली ये लग रहा था कि खलीफा उमर कभी भी इजिप्ट को फतह नहीं कर पाएंगे और मुसलमानों की फौज यहाँ से मायूस होकर वापस चली जाएगी।
लेकिन अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और सारी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। अचानक रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल में द ग्रेट रोमन एम्पायर का आखिरी पावरफुल बादशाह हेराक्लियस 30 साल की हुकूमत के बाद मर गया, जिसके बाद उसके जवान बेटे ने आकर अपने बाप का तख्त संभाला। इस यंग बादशाह से रोमन एम्पायर की बहुत उम्मीदें थी कि ये जरूर मुसलमानों से हमारी खोई हुई ताकत को छीनेगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन तख्त पर रहने के बाद इस बादशाह की सुतेली मां ने इसे मार दिया और अपने बेटे को रोमन एम्पायर की तख्त पर बिठाया। लेकिन ये देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स और अवाम को बहुत सख्त गुस्सा आया, जिसके बाद यहाँ पर रोमन एम्पायर में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसके बाद वो फौज जिसे हेराक्लियस ने मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। ये सिविल वॉर इतनी बड़ी कि बस सभी एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन जब हालात थोड़े कंट्रोल हुए तो रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा हुआ था। लेकिन मसला ये था कि इस नए बादशाह की एज सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। अब आप मुझे बताएं, जब एक 11 साल का लड़का खलीफा उमर के सामने खड़ा होगा तो उसके साथ क्या होगा? खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से रोमन एम्पायर की इस सिविल वॉर को बहुत गौर से देख रहे थे और उन्हें समझ आ चुकी थी कि इजिप्ट फतह करने का यही बेस्ट टाइम है। तो उन्होंने फौरन मदीना में एक लेटर लिखा और अपने मैसेंजर को ऑर्डर दिया कि फुल स्पीड ये लेटर इजिप्ट में आर्मी चीफ अमर बिन आस तक पहुंचाओ। ये मैसेंजर दिन रात एक करके बहुत तेजी से इजिप्ट पहुंचा। जैसे ही अमर बिन आस ने ये लेटर खोला, इसमें हजरत उमर ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि अम्र फौरन मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके मेरा ये लेटर उन सब के सामने पढ़कर सुनाओ। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मुसलमानों की पूरी फौज को जमा करके उनके सामने हजरत उमर का लेटर खोला और कहा, है मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पिछले 2 साल से लड़ रहे हो और अब तक इजिप्ट फतह नहीं कर सके। मुझे इस बात का खतरा है कि तुम रसूल अल्लाह और कुरान के बताए हुए तरीकों को भूल चुके हो और बिल्कुल हमारे दुश्मनों की तरह दुनिया की मोहब्बत में खो चुके हो। याद रखना, अल्लाह ऐसी कौम की मदद कभी भी नहीं करता। तो अब मैं तुम्हारे दिलों को मजबूत करने के लिए तुम्हारी तरफ एक नई फौज भेज रहा हूँ। तो अब अपनी इन पुरानी हरकतों से बाज आओ और उठो, अपने घोड़ों को ठीक करो, अपनी तलवारें निकाल लो और रोमन से एक आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि मुसलमान इजिप्ट को हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। हजरत उमर के इस लेटर को पढ़ने के बाद मुसलमानों की फौज का जज्बा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और अलेक्जेंड्रिया की सिटी पर ऐसा हमला किया कि रोमन्स इस हमले के सामने बिल्कुल बेबस हो गए और अपनी दीवारों, गेट्स, टावर्स को छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमान फाइनली इस सिटी में दाखिल हुए। यहाँ के गवर्नर साइरस ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे समझ आ गई कि एक 11 साल का बच्चा खलीफा उमर का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता, तो अब और लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ उसने अपना कलम उठाया और पूरे इजिप्ट को हजरत उमर की खिलाफत के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह इजिप्ट, फिरौनों का मुल्क, मुसलमानों के कंट्रोल में आया। अमर बिन आस ने इजिप्ट फतह करने के बाद सबसे पहले एक मैसेंजर जल्दी हजरत उमर की तरफ रवाना किया ताकि वो उन्हें इजिप्ट की फतह की खबर दे सके। ये मैसेंजर फुल स्पीड मदीना पहुंचा और हजरत उमर के घर के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ गया। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो वो सीधा मस्जिद नबवी की तरफ गए और वहां पर इस मैसेंजर ने हजरत उमर को इजिप्ट के फतह के बारे में बताया। ये सुनते ही हजरत उमर जमीन पर गिर गए और सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और पूरे मदीना को जमा करके उनके सामने इजिप्ट के फतह की कहानी सुनाई। नाउ हजरत उमर ने इसके बाद उस मैसेंजर को बुलाकर पूछा कि तुम मेरे घर के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ क्यों गए? उस मैसेंजर ने कहा कि मुझे लगा आप सो रहे होंगे। तो हजरत उमर ने उसे जवाब दिया कि अगर खलीफा दिन को सोएगा तो ये इतनी बड़ी खिलाफत कौन चलाएगा? नाउ अमर बिन आस के हाथों में इजिप्ट के साथ साथ एक और भी बहुत जबरदस्त ताकत है, रोमन नेवी, क्योंकि यहाँ पर रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा पोर्ट था। तो आर्मी चीफ अमर बिन आस ने फौरन खलीफा उमर से उनकी इजाजत मांगी कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अपनी पहली नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए अरब हमेशा डेजर्ट में ही रहे थे और उन्हें समंदरों और कश्तियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इनके मुकाबले में रोमन्स इस सब के चैंपियंस थे। तो हजरत उमर को पता था कि हो सकता है समंदरों में हम रोमन्स का मुकाबला ना कर पाए और हमारी सारी फौज डूब जाए। तो अमर बिन आस नेवी का आइडिया छोड़कर अफ्रीका की तरफ बढ़े और बहुत तेजी से
لیبیا, ट्यूनीसिया बल्कि अल्जीरिया तक पहुंचे. आखिर हजरत उमर ने लेटर भेजा कि अब और बस करो, हमारी खिलाफत बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं है. जिसके बाद अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज लेकर वापस इजिप्ट में अपने नए कैपिटल फुस्तात की तरफ आए और वहाँ उनकी मुलाकात कुछ बहुत ही अजीब लोगों से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि ज्यादा खुश होने से पहले ये बात अच्छी तरह जान ले कि हर साल दरियाए नील का पानी बिल्कुल सूख जाता है और उसे दोबारा बहाने का रास्ता सिर्फ हमें पता है. हर साल जब भी इस दरिया का पानी सूखता है, हम इस दरिया में एक जवान कवारी लड़की को फेंक देते हैं और इस लड़की की कुर्बानी के बाद ही दरिया का पानी दोबारा बहने लगता है. तो तुम मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा. मुसलमान ये सुनकर हैरान रह गए कि ये क्या पागल लोग हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और दरियाए नील का पानी ऑलमोस्ट सूख गया, जिससे मुसलमान थोड़ा घबराने लगे कि ये तो वाकई दरिया बिल्कुल सूख रहा है. और आखिर दरिया का पानी इतना कम हुआ कि कुछ लोग ये तक सोचने लगे कि क्या हमें भी इस दरिया के पानी को बहाने के लिए ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए. ये सब देखकर आखिर अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि अब आप ही फैसला करें हमें क्या करना चाहिए. हजरत उमर ने ये लेटर पढ़ते ही कहा कि ये क्या है, हम तो इस दुनिया में आए इसलिए हैं कि दुनिया के इन पुराने सारे रिवाजों को तोड़ दे. तो फौरन हजरत उमर ने एक चिट्ठी भेजी और कहा कि इस चिट्ठी को दरियाए नील में डाला जाए, जिसमें लिखा था, ऐ नील के पानी, अगर तू आज तक हजारों साल से अपनी मर्जी से बहता है तो रुक जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं. लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो हम उसी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तेरा पानी दोबारा जारी कर दे. जिसके कुछ ही अरसे बाद दरियाए नील का पानी पहले से भी ज्यादा बहने लगा. इस तरह हजरत उमर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि ये वो हुक्मरान है जिसका खत भी दरिया मानते हैं. आज के हमारे हुक्मरान क्या है? पूरी दुनिया के सामने एक नया निजाम रख रहे थे और उनके दौर में इंसाफ का एक ऐसा निजाम था कि एक दिन आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे ने इजिप्ट फतह होने के बाद एक आम इजिप्शियन को एक छोटी सी बात पर डंडों से मारा और ये दिखाने की कोशिश की कि अब हम तुम्हारे बादशाह हैं और तुम हमारे गुलाम. ये इजिप्शियन उसे वहाँ तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने हमेशा से हजरत उमर के इंसाफ के बारे में बहुत सुना था. तो वो सीधा इजिप्ट से मदीना की तरफ गया और जाकर हजरत उमर के सामने अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत की. ये सुनकर हजरत उमर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस इजिप्शियन को कहा कि तुम यही बैठो और फौरन एक लेटर गवर्नर अमर बिन आस की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि अपने बेटे मोहम्मद बिन अमर को लेकर मदीना की तरफ आओ. जैसे ये दोनों बाप और बेटा मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत उमर के साथ सब बैठे हुए और साथ ही वो इजिप्शियन भी. खलीफा उमर ने उन सब के सामने उस इजिप्शियन को अपना डंडा दिया और कहा कि आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे को बिल्कुल उसी तरह मारो. बेटे को मारने के बाद अब खलीफा उमर ने उस इजिप्शियन से कहा कि ये डंडा लेकर इसके बाप अमर बिन आस के सर पर भी मारो, क्योंकि इसी बाप के पोस्ट की वजह से इसके बेटे ने तुम्हें मारा था. उस इजिप्शियन ने अमर बिन आस को तो नहीं मारा, लेकिन हजरत उमर ने अमर से कहा कि तुम कब से लोगों को गुलाम बनाने लगे जब उनकी माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया है. इसी जबरदस्त जस्टिस की वजह से अब हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर बन चुके थे. लेकिन इजिप्ट फतह करने के फौरन बाद पर्शियन एम्पायर का बादशाह एक बड़ी फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी था. सब्सक्राइब. ये उमर बिन खत्ताब की हमने आपको आज वीडियो दिखाई है. आगे हम इसके दूसरा भी पार्ट दिखाएंगे आपको. सब्सक्राइब.